Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. So this is the first screen you will get as in when you install your Tableau properly, and the first and foremost thing is you require to connect with the data source. Why data source? Because for any type of visualization you require data. For analysis you require data, right? So this is the pan you are having, connection pan, where you will get a different type of connectivity over here. The first connectivity is Tableau server, which is paid one. Then you can use local file as a data. Then different type of server like Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle. So there are lot many data source data based system available. You can see here ये सारे जो है वो जो है वो database system है यहाँ पे. MongoDB is also there. Okay, so cloud system is also there. Okay, then गूगल ड्राइव का डेटा अगर आपको एनालिसिस करनी है वो भी है. स्पार्क एसक्यूएल भी है. ठीक है, तो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल ओवर हियर. ओके, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. तो हमने क्या किया था, वी आर यूजिंग एक्सेल फाइल currently available. This file I have uploaded on in Google Classroom also. Global Superstore. This is the file we will use for the analysis. Okay. Now currently in this particular file there are three tables available. Okay, तो यहाँ पे एक है order table. ठीक है, where order table is having different this fields. Okay, row id, order id, order date, ship mode. So different types of data is there in the order table. Then after people table is also there. So whatever whichever table you want to analyze, that only table you require to add here. Okay, तो यहाँ पे मैं तीनों ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम तीनों के कॉम्बिनेशन में जो है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ when you drag and drop this particular table in this a connection area, what it will do, it will just connect with the given id. Okay, given primary key. So यहाँ पे देखो order id और people, orders and people दोनों ही टेबल में रीजन जो है वो क्या है, कॉमन फील्ड है जिसके थ्रू ये दोनों का कनेक्टिविटी होगा. ठीक है, सो दैट वे वी कैन connect. The third one is written table. Now in this table also we require to see order ID is the primary key for this table. और यहाँ पे भी order ID है, तो दोनों के बीच में अभी connectivity possible है. There should be one common key should be there to connect two table. Okay, so that way here we are having this particular connection. So if you want to add anything else or any other connection, you can connect with this. Okay, now after that you require to go for the sheet. Okay, so this is my sheet available, and here I am having all the three tables. Now here you can see this. The first one is orders, second one is people, and third one is written. आप सबको दिख रहा है ये? ठीक है, तो ये जो है वो तीन जो है वो यहाँ पे टेबल है. बड़ा कर सकती हूँ इसको मैं. नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है. ठीक है, सबको दिख रहा है ना, पर ये टेबल्स जो हमारे लेफ्ट पैन में है. ठीक है, now here we are having different type of let's say fields with different data types. Okay, like product name and region is with string data type. You can see here ABC is written over here, and then after row ID is your numeric data type, and ship date is your date data type, and state is your location data type. Okay, so this is the type of field which you can again go drill down and you can get the details. Even जो कंट्री डेटा होता है उसका भी हम ड्रिल डाउन कर सकते हैं. जैसे कंट्री अगर है तो कंट्री को और ड्रिल डाउन करके वी कैन गो फॉर स्टेट वाइज डेटा और सिटी वाइज डेटा. ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के टेबल हमारे पास है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग, देयर आर टू डिफरेंट बाइफर्गेशन ओवर हियर इन द टेबल. द वन इज द ब्लू वन एंड अनदर वन इज ग्रीन. दिख रहा है सबको ये? ठीक है, तो ये जो है दिस आर ऑल कॉल्ड मेजर्स एंड दिस आर कॉल्ड डायमेंशन. what is the definition of measures? Yes, anyone?
some values, okay, numerical value or quantitative field. Very good, Shubham. Okay, so this is the analysis field, you can say. आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, ज़्यादातर एनालिसिस इसके ऊपर होगा. ठीक है. Yes, very good, Nisha. It contains quantitative fields, of course, and the qualitative fields are your dimensions, where we are having, like, say, screen or descriptive data, or the data which are having, let's say, row id. तो row id is for sequential data. अगर आपको चाहिए तो उसके लिए row id रहता है. ठीक है. तो वो सारा डेटा, पर उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर सकते. वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एनी एनालिसिस, यू रिक्वायर दिस डायमेंशन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस डायमेंशन यू आर मच मोर interested for the measures, not for the dimension. Okay, but based on dimension, of course, these measures will come. Okay, so that is what the difference between the dimension and measures. The same way we are having people table, where the two fields are there as a dimension, and one field, people count field, is there as a dimension, sorry, as a measures. And same with the returns field. Okay, so this is the three these are three tables we are having in this particular uh, data set. Okay, now we want to analyze something. Okay, so whatever you will do, whatever work you will do, that you will do over here. This is what your work area is. The whole screen is your workbook. Under this workbook there are different sheet 1, sheet 2, and number of sheet you can create for the different types of reports or analysis, and that is nothing but your worksheet, just like your Excel. Okay, and uh, and in one worksheet you are having this one work area where you will work on this analysis. Okay, now there are two fields are there, that is column and rows, which is very very important for any type of analysis. This is just displaying that, okay, which particular data you want column wise and which particular data you want row wise. Okay, so that is what we required over here. We required field, then only we can analyze it, right? Okay, then after we are having pages, number of pages. Okay, then after filters. Filters are nothing but you can say you want a condition on this dimension or measures. Okay, you can apply condition on any of it, like one condition is country is equal to, let's say, India. That is what one type of filter. You want all the details for India. Okay, and if you want let's say profit, the country which is having profit greater than, let's say, 10 lakh. Okay, so that is also a filter on measures. Okay, so that is what the area we are having, that is filters. And then after we are having different colors, size, लेबल, डिटेल्स एंड टूल टिप. ये सब क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे अभी. ठीक है. सो नाउ वी विल टेक वन सिंपल एक्सरसाइज फर्स्ट, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है. दिस आर ऑल you can say different type of visualization you will get over here. The first one is report type, and then after report with coloring report, and then after maps, different type of charts. Okay, so different graphs है यहाँ पे. तो ये सारी, जैसे गैन चार्ट हो गया, ये बुलेट ग्राफ, पैक्ट बबल, ये डिफरेंट टाइप्स के बॉस एंड विस्कर आपने पढ़ा होगा ये MFCF में. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के, ये स्कैटर्ड प्लॉट हो गया. तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पे ग्राफ, विच आर आल्सो अवेलेबल विद द एक्सेल. बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेल, दैट वी विल सी. ओके, नाउ वी विल गो फॉर असाइनमेंट 1. ओके, असाइनमेंट 1 में आपको जब भी कोई एक्सरसाइज दी जाती है तो कौन से फील्ड पे क्या विजुलाइज करना है उसके ऊपर ध्यान देना है. Everybody can see this page, open source BI tool, assignment 1. Yes, is it visible? Yeah, Shubham. Any question? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, first of all, just tell us, ma'am, how we just add that global data and where we get that data. I have already gave you that field. Okay, वो field मैंने already दिया है आपको. आपको बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करके ब्राउज करके अपना डेटा ले लेना है. ठीक है, जहाँ पे भी जो पाथ पे है. ठीक है. Ma'am, can you just show once? ओके,
यहाँ पे आप देखो, ओके यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गए, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका वो ये फाइल होगा वो लेना है। जैसे आपने डाउनलोड किया और डाउनलोड फोल्डर में है तो गो टू डाउनलोड और वहां से ले लो, ठीक है। ओके मैम, क्लियर क्लियर मैम। हुआ सबको ये? ठीक है, अभी मेरा जो है वो लैब 6 के फोल्डर के अंदर है तो मैंने वहां से लिया है। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। सो ये हमारा जो है वो वर्क पेन है, यू कैन से, और वर्क एरिया, ठीक है। और हम बात कर रहे थे पहला असाइनमेंट, ठीक है। सबको दिख रहा है क्या पर ये असाइनमेंट? एवरीबडी कैन सी दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, थैंक यू। तो पहला है फाइंड द कस्टमर विद द हाईएस्ट ओवरऑल प्रॉफिट। तो हमें कौन कौन से दो, पहले सिर्फ इतना ही पढ़ना है, फाइंड द कस्टमर विद द हाईएस्ट ओवरऑल प्रॉफिट। तो अभी आपको कौन कौन से फील्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? तो पहला फील्ड क्या है, कौन बताएगा? फर्स्ट फील्ड, Customer, वेरी गुड। एंड द सेकेंड वन इज? profit, Yes. So we are currently interested for only these two fields. इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो now we will go for Tableau, okay, and we will drag and drop this two, customer and एक कस्टमर चाहिए हमें सारे, देखो रो में चाहिए इसलिए मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, वरना कैसा होता कस्टमर को उसके पीछे देखना पड़ता। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रो वाइज चाहिए। तो ये कस्टमर को नीचे कर दिया तो वो रो वाइज आ गया, ऊपर करेंगे तो कॉलम वाइज हो जाएगा, ठीक है। सो वी रिक्वायर्ड कस्टमर रो वाइज, वो आप करोगे विजुअल एक बार तो स्टार्ट में समझ में आ जाएगा, बाद में कैसे करना है। एंड देन आफ्टर वी आर इंटरेस्टेड फॉर प्रॉफिट्स, ओके। सो कस्टमर और प्रॉफिट, तो इसके लिए हम लोग इंटरेस्टेड है कस्टमर एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ओवर हाईएस्ट ओवरऑल प्रॉफिट। कस्टमर और प्रॉफिट तो ले लिया हमने, बट नाउ वी रिक्वायर्ड हाईएस्ट प्रॉफिट। कहाँ पे मिल रहा है हाईएस्ट प्रॉफिट? सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो फॉर द शॉर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट किया हमने ये, तो शॉर्ट करने पे समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो ये वाला है कस्टमर, उसको हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है एंड द प्रॉफिट इज 8673। क्लियर? देखो प्रॉफिट भी दिख रहा है यहाँ पे सबको, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ये कस्टमर को मिल रहा है। कैसे पता चला? यहाँ पे जाएंगे ऊपर तो आपको एक शॉर्टिंग टूल मिलेगा, सो वहां से हम ये शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ओके। सो नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट इज हीज और हर प्रोफाइल प्रॉफिट रेशियो। अब प्रॉफिट रेशियो हमें कैसे मिलेगा? सो प्रॉफिट रेशियो मीन्स व्हाट, सेल्स डिवाइड बाय प्रॉफिट, ओके, दैट इज व्हाट द प्रॉफिट रेशियो इज। क्या आएगा? प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है? Sales divided by profit, sum of sales divided by sum of profit, that is what the profit ratio is. So now we required another field. Which field? Sale, okay. तो ये सेल्स फील्ड जो है वो हम यहाँ रखेंगे। वो हमें विजुअलाइज कैसे करना है? हाँ, तो यहाँ पे देखो अभी हमें डेटा क्या मिलना शुरू हो गया, प्रॉफिट और सेल्स भी दिख रहा है यहाँ पे, पर हमें जो विजुअलाइजेशन चाहिए ग्राफ के थ्रू वो कस्टमर टू प्रॉफिट, बट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड द डिटेल्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो जब हमें सिर्फ डिटेल चाहिए और उसका विजुअलाइजेशन नहीं चाहिए, उसको हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस इधर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ नहीं रखना है बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड करंटली, हमें यहाँ चाहिए सेल्स। क्लियर हुआ ये? because we don't want to visualize it, we just want a details, okay। अब आपको यहाँ पे ये तो मिल रहा है, पर what we required sales divide by profit। सेल्स डिवाइड बाय प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो दो तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो, आइदर तो टूल टिप में जाके आप यहाँ पे वो फॉर्मूला डाल दो, ठीक है, या फिर आप एनालिसिस में जाके क्रिएट कैलकुलेशन फील्ड और यहाँ पे आप फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फील्ड है सम ऑफ सेल्स
डिवाइड बाय सम ऑफ प्रॉफिट. ओके, ये डायरेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट रेशियो. क्लियर हुआ? ठीक है, इसको अप्लाई करिए आप. और ओके, जैसे ही अप्लाई ओके किया तो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 करके फील्ड आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसने कैलकुलेशन 1 नाम लिया था. कैसे नाम लिया था? यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन 2 आ गया. यहाँ यू कैन चेंज दिस नेम ऑल्सो, फॉर्मूला नहीं, वो चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? और इसको ड्रैग करके अब यहाँ रखना है. ठीक है, सो नाउ यू विल गेट दिस ऑल्सो. ठीक है, या ये क्या है आपका प्रॉफिट रेशियो. क्लियर हुआ? कैलकुलेशन 1. ये कैसे आया? यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कैलकुलेशन 1 लिखा था, उसकी जगह पे आप प्रॉफिट रेशियो लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट रेशियो. ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? तो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लेना है, वो फॉर्मूला आप जैसे कि आपको दिखाना है कि कोई भी सम ऑफ सेल्स है, वो सेल्स को 10% इंक्रीज करके दिखाना है, तो उसका जो भी फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला आपको कहाँ पे लिखना है? क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखना है. वो जैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूले के नाम से एक आपको मेजर यहाँ पे मिल जाएगा, and that measure you require to use here because you required as a detail, not as a visualization. Clear everyone? समझ में आया सबको ये? ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इस तरीके से. देखो हमने यहाँ पे इसको शॉर्टिंग किया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो दिखाया है. देखो कैलकुलेशन 1 0.61, डेटा अलग है इसलिए ये वैल्यू अलग आ रही है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन एक्सेस, यू कैन यूज दिस टूल. Another one is which state has the highest sale? What is the total sale for that state? Very simple. क्या क्या लेना है यहाँ पे? कौन बताएगा? कौन कौन से फील्ड लेने हैं? Yes, anyone? Which field required for this query? Which state has the highest sales? State, very good. And the second one is sum of sale. Okay. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इंस्टेड ऑफ कस्टमर एंड प्रॉफिट वी रिक्वायर्ड व्हाट? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो निकल जाएगा. सम ऑफ सेल विथ हाईएस्ट प्रॉफिट, यही बोला था ना. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेल्स? तो स्टेट चाहिए हमें. ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे स्टेट. क्लियर? अब हाईएस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाउ वी विल गेट द हाईएस्ट वन? यस एनीवन? हाईएस्ट कैसे मिलेगा? शॉर्टिंग, वेरी गुड. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? शॉर्टिंग. क्लियर हुआ? सो दिस इंग्लैंड इज हैविंग द हाईएस्ट सेल्स. यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि सेल्स हमने डिटेलिंग में नहीं डाला है. ठीक है, टूल टिप में ये मिसिंग है. ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं, तो नाउ यू विल गेट. ठीक है, रीसेट करने से वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वापस से जो भी करंटली पेन में है, वर्क पेन में है, उस हिसाब से डिटेल दिखाए. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अप टिल नाउ? दिस इज द इजीएस्ट वन यू कैन से, और आपको करने में बहुत मजा आएगा इसको. ठीक है, एक दो और देखते हैं जहाँ पे फिल्टरिंग आता है, वो देखते हैं, क्योंकि अभी हम एक फिल्टर वाला लेते हैं. ओके, थर्ड वन में ही फिल्टरिंग आएगा. ठीक है, विच कस्टमर सेगमेंट हैज बोथ द हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी एंड एवरेज डिस्काउंट रेट? क्वेश्चन क्या है? विच कस्टमर सेगमेंट हैज बोथ द हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी एंड एवरेज डिस्काउंट रेट? कैसे करेंगे इसको? कौन बताएगा? विच fields required over here?
So we required customer segment first field, order quantity second field, and discount third field. So here we are having three fields. So which customer segment has both the highest order quantity and average discount rate? तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन फील्ड है, कस्टमर सेगमेंट, हाईएस्ट ऑर्डर क्वांटिटी एंड डिस्काउंट. ओके, इन तीनों से काम करना है. तो कस्टमर, यहाँ पे सारा निकाल दिया मैंने वापस. ठीक है, एक बार वापस चेक करेंगे. सेगमेंट, ऑर्डर क्वांटिटी एंड डिस्काउंट. तो सेगमेंट है यहाँ पे, देखो यही दिख रहा है यहाँ पे. पहली बार जब सेगमेंट लिया तो ऐसा आएगा. सेकेंड टाइम वी रिक्वायर्ड क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डर क्वांटिटी. तो यहाँ पे आ जाती है क्वांटिटी. एंड द थर्ड वन इज डिस्काउंट. वेयर इज डिस्काउंट? ठीक है, तो आइदर तो वी कैन विजुअलाइज दिस वे कि यहाँ पे आपको दोनों ही ग्राफ मिल रहे हैं कि सेगमेंट के हिसाब से क्वांटिटी और डिस्काउंट कैसे हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक को डिटेलिंग में डाल दो और एक को यहाँ पे सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए रखो. तो यू विल गेट ओनली वन ग्राफ एंड यू विल गेट द डिस्काउंट डिटेल्स ओवर दिस ग्राफ. ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं ग्राफ. अब सेगमेंट को सपोज आपको फिल्टर करना है कि देर आर 3 सेगमेंट बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर द होम ऑफिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो आपको इस तरीके से फिल्टर भी कर सकते हैं. अप्लाई, ओके. तो यहाँ पे देखो फिल्टर्स के अंदर आ गया, सेगमेंट के ऊपर हमने फिल्टरिंग किया एंड करेंटली वी आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर द होम ऑफिस. क्लियर? नाउ सपोज वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर द प्रोडक्ट नेम. ठीक है, सो सेगमेंट के अंदर हम प्रोडक्ट नेम के ऊपर इंटरेस्टेड है. फिल्टर आउट करेंगे प्रोडक्ट नेम, पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम के ऊपर काम करना है. कैसे करना है? सिर्फ यहाँ पे जाके फिल्टर, कोई भी जगह पे कंडीशन लगाने के लिए क्या करना है, वो फील्ड के यहाँ पे जाके फिल्टर करके हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है सपोज, या ये प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, अप्लाई, ओके. सो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट. सो ऑटोमेटिकली ये सेगमेंट निकल गया था, पर ऑटोमेटिकली इट विल गो फॉर द शो फिल्टर में. आप जाओगे तो आपको एक ही फिल्टर मिलेगा, होम ऑफिस. ठीक है, अगर आपने उसको निकाल भी दिया तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि होम ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट नेम है. कैसे? क्योंकि सेगमेंट के हर सेगमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है. ठीक है, देयर आर 3, यू कैन से कैटेगरी है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी है और उसके हिसाब से डेटा है. ठीक है, ओके. देन आफ्टर ये फिल्टरिंग समझ में आया सबको? कैसे करना है फिल्टरिंग, कैसे करना है समझ में आया सबको? यहाँ पे कोई भी जगह पे आप जाओ तो वहाँ पे आपको एडिट फिल्टर मिलेगा. वहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन, कोई भी जो भी लेना चाहते हैं कंडीशन, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. आप कंटेन्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ, एग्जैक्टली मैच करके मैच पैरामीटर रख सकते हैं. यहाँ पे कोई कंडीशन रखना चाहते हैं तो कंडीशन रख सकते हैं. टॉप एंड, जैसे टॉप 10 फील्ड चाहिए तो टॉप 10 फील्ड रख सकते हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पे पूरी कंडीशन आपको मिलेगी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर फिल्टर. ओके, तो यहाँ पे देखो उन्होंने फिल्टर लगाया है. अब ग्राफ के ऊपर हम आते हैं, पहले ऐसे ही देख लेते हैं, बाद में ग्राफ के ऊपर आते हैं. ठीक है, बार चार्ट डिस्प्लेइंग टोटल सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी. ठीक है, अब आपको सपोज ऐसा चार्ट चाहिए कि जो प्राइस के हिसाब से कलर शेड देता हो. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस टैब्लू. तो वो कैसे होगा? सो नाउ वी विल गो फॉर टोटल सेल्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरी. ठीक है, तो वो दोनों लेते हैं हम लोग. तो प्रोडक्ट कैटेगरी इज देयर, यस, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सेल. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये सारा अभी हमें नहीं चाहिए फिलहाल, और सेल्स. ठीक है,
तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 कैटेगरी है। ठीक है, और उसकी टोटल सम ऑफ सेल्स वी कैन सी ओवर हियर। ठीक है, इसमें टूल टिप समझ में आया। ठीक है, साइज आप देख सकते हो, साइज को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू वांट टू सी योर ग्राफ। ठीक है, डिटेल्स में जाना है तो डिटेल्स में आपको मैप के अंदर मिलेगा कैसे डिटेल में जाना है। और यहाँ पे इट इज ऑलरेडी इन डिटेल, जहाँ पे आपको टूल टिप दिखाई दे रही है। ठीक है, आप इसको कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हियर थ्रू कलर कोड यू आर एबल टू सी दिस, द डार्क कलर जो है वो क्या है, मैक्सिमम, और उसके नीचे ये शेड आता है तो ये उसके ही उससे कम है, और ये उससे नीचे आता है तो ये उससे कम सेल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कलर कोड भी मिलेगा सो दैट यू कैन इजीली बाइफरकेट डेटा एंड यू कैन इजीली सी द मैक्सिमम एंड मिनिमम डेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? कलर कोड कैसे पता चला आपको? सो यहाँ पे जाके आपको जैसे टूल टिप है, ठीक है, तो टूल टिप ऑटोमेटिकली आ ही रही है यहाँ पे, उसमें कलर कोड करना है। ठीक है, तो उससे आपको ये कलर स्कीम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है कैसे कलर ऐड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर। यहाँ पे और फिल्टरिंग का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखेंगे हम लोग कि हाउ वी कैन यूज जोग्राफिकल मैप्स ओवर हियर। ठीक है, तो कोई भी टाइप के जोग्राफिकल मैप अगर आपको चाहिए तो उस टाइप से आपके पास हायरार्किकल डेटा होना चाहिए, एंड वी आर हैविंग वन हायरार्किकल डेटा, दैट इज कंट्री। कंट्री इज हैविंग डेटा लाइक कंट्री, स्टेट एंड सिटी। इतना ड्रिल डाउन हम डेटा को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हम लोग ले रहे हैं कंट्री का डेटा। ठीक है, तो कंट्री का डेटा कैसे लेना है, इसको हमें नहीं चाहिए अभी। सो नाउ वी विल गो फॉर कंट्री। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कंट्री वाइज यहाँ पे डेटा मिल रहे हैं। ठीक है, कितनी कंट्री का डेटा है वो यहाँ पे हमें मिल गया, यू कैन से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप रो वाइज कॉलम वाइज चेंज करके देखोगे तो भी समझ में आएगा कैसे डेटा मिल रहा है। ठीक है, और डबल ये क्लिक करने पे पता चलता है ये कंट्री वाइज डेटा है। कंट्री वाइज प्रोडक्ट का डेटा चाहिए तो प्रोडक्ट का डेटा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट डेटा है। ठीक है, हर डेटा के साथ एक मैप यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे भी हम वो प्रोडक्ट डेटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो इन दैट डिटेल इट विल शो यू विच प्रोडक्ट इज देयर। ओके, और भी डिटेल में डेटा देखना है तो आप डेटा देख सकते हैं। प्रोडक्ट ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का डेटा दिख रहा है, और यहाँ पे हम कलर कोड करना चाहते हैं तो कलर कोड कर सकते हैं। इट्स बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो देखो कलर कोड भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हर कलर के लिए डिफरेंट ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख सकता है डेटा। ठीक है, ये देखो ये डिफरेंट डेटा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये डेटा मिल रहा है। समझ में आया सबको ये कैसे करना है? ठीक है, हाँ ओके। ये एक बार आप शुरू करेंगे ना तो हमारा डेटा डिफरेंट है और इनका डिफरेंट है, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। बट एक बार आप इसको करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आइडिया कि कैसे करना है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस असाइनमेंट विथ यू। ठीक है, आप देख सकते हो वो असाइनमेंट कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड किया है, उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, so that you can see the video and you can perform the practical. Okay,
So that way you can you solve your practicals. Okay. There are actually three types of visualization over here. The different visualization based on condition, visualization based on maps, and visualization based on reports. Okay, जो normal report हम निकालते हैं ना, वो report भी हम यहाँ पे easily निकाल सकते हैं. जैसे report, prepare a report showing product category wise sale, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल. ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल कैसे मिलेगा हमें यहाँ पे? सो ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल है. ठीक है, उसको अगर आपको रिपोर्ट, ये आपका जो था वो ग्राफ फॉर्मेट में था. ठीक है, अभी इसको आप रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, द फर्स्ट ऑप्शन इज योर टेक्स्ट टेबल्स. ओके, तो टेक्स्ट टेबल के फॉर्मेट में करेंगे तो टेक्स्ट टेबल में आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज योर रिपोर्ट एंड हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टी. ये ऑटोमेटिक आ रहा है टी. योर सेल्स डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. तो समझ में आया ये टेक्स्ट कैसे आया? ठीक है, तो ये इधर क्लिक करने पे आपका क्या आ जाएगा? रिपोर्ट्स आ जाएंगे. ठीक है, फिर उस तरीके से देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रिपोर्ट. यू कैन से शो रिपोर्ट स्टेट वाइज सेल. ठीक है, तो स्टेट और सेल्स का रिपोर्ट है ये. ठीक है, कहीं पे अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे है टोटल सेल फॉर द होम ऑफिस कस्टमर सेगमेंट इन जुलाई ऑफ 2014. अब ये सारा क्या है? दिस इज नथिंग बट फिल्टर्स. फिल्टर्स ऑन व्हाट? होम ऑफिस. होम ऑफिस कहाँ पे है? यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे सेगमेंट के अंदर होम ऑफिस है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कैटेगरी देयर इज अ सेगमेंट, और सेगमेंट में हमें सिर्फ लेना है क्या? फिल्टर होम ऑफिस. ठीक है, अप्लाई. ओके, ठीक है, तो होम ऑफिस करके यहाँ पे सेल्स आ जाएगा. अगर आपको इसको होम ऑफिस को ग्राफ के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ रखना है. अगर रिपोर्ट के फॉर्मेट में होगा तो वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, डिटेलिंग में चला जाएगा. ठीक है, और अगर विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए तो आपको यहाँ जो भी रहेगा वो विजुअलाइजेशन में रहेगा. ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे हमने ये लिया है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पे एक मेजर्स लिया जिसको हमने यहाँ पे एक फील्ड है डायमेंशन जिसको यहाँ पे फिल्टर किया होम ऑफिस, और वो फिल्टर अब यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, इसको बबल फॉर्मेट में चाहिए तो बबल फॉर्मेट में भी हम देख सकते हैं. इसी के ऊपर हमें कुछ और देखना है कि शिपिंग डेट इसकी क्या होगी, तो शिपिंग डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं. ठीक है, तो शिपिंग डेट में देखो यहाँ पे ईयर, क्वार्टरली, मंथली, डे वाइज, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से हम ये कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो 4 साल का डेटा था, वो 4 साल के डेटा के हिसाब से ये आ रहा है. ठीक है, 2014 का डेटा, 16 का, 13 का, 15 का. ठीक है, उस हिसाब से ये 4 बबल आ रहे हैं. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? जो भी आप डिटेल्स दिखाना चाहते हो वो आपको कहाँ रखनी है? यहाँ पे. ठीक है, और फिल्टरिंग होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा. ये फिल्टरिंग का एरिया है, जो जो फिल्टर आपने किया है. ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए अभी. तो देखो डिटेलिंग, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो चला गया. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको ये? ये एक बार आप करना शुरू करेंगे तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा. ठीक है, एक बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो ऐसे रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं. इसको इधर कर लिया तो रिपोर्ट के फॉर्म में आएगा. ठीक है, कोई भी डेटा को इधर कर लिया तो रिपोर्ट के फॉर्म में आएगा. यहाँ पे कर दिया तो डिफरेंट कलर कोड रिपोर्ट है ये. ठीक है, जिस हिसाब से आपको करना है वैसे कर सकते हैं. ठीक है, शिप डेट के हिसाब से सेल्स का डेटा है यहाँ पे, तो उसमें समझ में आ रहा है कि दिस इज लाइन ग्राफ, और उसमें पता चल रहा है कि एक पिक के बाद एक
सीवियर फॉल्स है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको देख के तुरंत पता चलता है कि डेटा किस तरह का है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सिंपल 3 टाइप के असाइनमेंट मैंने अपलोड किए हैं। वी कैन सी दिस असाइनमेंट आल्सो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है एनालिसिस ऑपरेशन के ऊपर, ये असाइनमेंट है मैप के ऊपर, और ये असाइनमेंट है रिपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं इसके अंदर, ठीक है। Thank you, everyone.